For interrupting you. Anila Singh from the BJP is also joining us on the broadcast. Anila Singh, there is news that the Congress party are waiting for the elections in Wayanad to be over and then they just might announce the names of their candidates from Rai Bareli and Amethi. There has been just so much suspense and one is just wondering that why haven't they announced the name just as yet? My Ram to all, and this is to be decided by the family of Congress party. So whenever the आकाश they decide कि अच्छा अब हम अपने नाम का announcement करेंगे, आप सब लोग मेरी जो जनता है शांत होकर बैठो. So this is what they are doing. Everybody is asking, right from the Congress party to media, to all political parties, to every person who has to vote from Amethi and Rai Bareli, they want an answer from the Congress party. Why is the BJP not announcing their candidate from Rai Bareli? There is also news, Ms. Singh, doing the rounds that perhaps Varun Gandhi, who is in the political cold right now after he was not given a ticket, just might be given a feeler to test waters in Rai Bareli. Is that true? See, first of all, I have to tell you this thing very clearly. For us, Rai Bareli or the Amethi is not the constituencies as for the Congress party. These two constituencies are reserved for Congress party's the family. Like they have to decide whether they are going to contest or not, or if they are not contesting, then who is going to contest? No, sure, but even the BJP will have to announce their candidate, isn't it? Like just you mentioned for the Congress party, even the electorate in Rai Bareli would be wondering who is going to be contesting from the BJP. For us, Rai Bareli is not a VIP seat. It is just a general seat like any other seat for us. But there are many more seats where we have not announced the candidature. So in the future, we will do so. But the reality is, if I talk about the Amethi and the Rai Bareli constituencies, these are the VIP constituencies because they have always been held by this Nehru Gandhi family. If they are not announcing, this shows the insecurity which they are going through. They are so scared of Bharatiya Janata Party. They are so scared of Smriti Irani ji. They are so scared that Modi is coming third time. That is why they are not able to announce the candidatures, whether they are going to contest or somebody else is going to contest. The latest is, I have heard Akhilesh Yadav said in Kannauj, हम तो सब लोग यूपी में आकर लड़ेंगे. When he was asked that whether Rahul is going to contest or not, महफिल यहीं जमेगी. This is the mindset of the शहजादास. जहाँ शहजादे बैठेंगे महफिल वहीं जमेगी. तो बता तो दें किसको नचाना चाह रहे हैं. Ms. Singh, there is also news of Robert Vadra ab ki baar. These kind of posters that have surfaced across Amethi, he's also expressed a desire. Do you think that perhaps is causing some sort of a dilemma for the Congress party? What to say? मम्मी जी पार्लियामेंट में बैठेंगी, बेटा जी पार्लियामेंट में बैठेंगे, बेटी जी पार्लियामेंट में बैठेंगी, जीजा जी पार्लियामेंट में बैठेंगे. भाई साहब, what is this? Stay on with me, Anila Singh. Just please stay on with me. Fakrul Chand from the Samajwadi Party is also joining us. In fact, Anila Singh just talking about the Samajwadi Party. Fakrul Chand ji, thank you so much for speaking to CNN News 18. धन्यवाद. All right, I think we have lost his line. Okay, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है जी. ये बहुत ही सस्पेंस बढ़ रहा है. कांग्रेस ने अभी तक अपने जो कैंडिडेट्स के नाम ही नहीं रिलीज कर रहे हैं, राय बरेली और अमेठी. ऐसा क्यों? देखिए, सभी दलों की अपनी अपनी रणनीति है जी कि कैसे चुनाव प्रचार करना है, कब प्रत्याशी का चयन करना है, कब उनको जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने जाना है. ये हर पार्टी अपना तय करती है. अगर भाजपा से पूछा जाए तो अभी हम पूछ रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट होगा या नहीं होगा, उस सीट पे आप प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं. तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, कौन लड़ता है. परिवारवाद की बात कर रही थी, तो परिवार में तो भारतीय जनता पार्टी में तो कोई पिता मुख्यमंत्री है, बेटा मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है. पूरे देश में परिवार है. उनके गठबंधन के भी जो साथी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, तो परिवारवाद की बात भाजपा के मुंह से अच्छी नहीं लगती है. और सवाल है इंडिया गठबंधन का, तो जितने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के हैं, हम कब उनको घोषित करेंगे, कब चुनाव प्रचार में जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का मामला है. फखरुल चंद जी, एक बात बताइए, सपा में भी बहुत चर्न हो रहा है. मतलब आपके अखिलेश जी ने अभी तेज प्रताप यादव का नाम अनाउंस करा था और अब उन्होंने सडनली ये डिसीजन ले लिया कि वो ही कंटेस्ट करेंगे. तो ऐसा चेंज क्यों हो रहा है? और जहां तक आप राय बरेली और अमेठी की बात है, बीजेपी कह रही है कि कोई डर है
ये जो इंडी ब्लॉक का डर है वो नहीं चाहती कि वो दोबारा हारे। आप इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, डर तो भाजपा को भी है कि अच्छा। उनके जो महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार उनके सांसद ने किया महिला खिलाड़ियों के साथ, और आज भी उस सीट पे अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बेल्ट खत्म हो जाए जहां पे वोट है, उसके बाद वो उस प्रत्याशी को घोषित करें। तो डर तो भारतीय जनता पार्टी को, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में आज नॉमिनेशन फाइल किया है। कन्नौज की जनता को न्याय दिलाने के लिए, कन्नौज की जनता में जो अन्याय हो रहा था, इत्र की नगरी जो जिस तरीके से बर्बाद हो रही थी, उस नगरी में कन्नौज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी गए हैं, विकास के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी गए। और जहां तक प्रत्याशियों के चयन, मगर बहुत ही लास्ट मिनट पर फखरुल चंद जी, बहुत ही लास्ट मिनट पर उनको ये रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का तो नाम उन्होंने डिक्लेयर कर ही लिया। आप मेरे साथ बने रहिए। अनिला, दैट्स द चार्ज अगेंस्ट योर पार्टी एज वेल, दैट इवन यू आर अ बंच ऑफ नर्व्स एंड दैट्स व्हाई द बीजेपी इज नॉट डिस्क्लोजिंग द कैंडिडेट्स नेम फ्रॉम रायबरेली। See, as I mentioned earlier, for us, Raebareli is not the VIP seat. It is just like any other constituency for us. It is a VIP seat for the Congress party. And I will, he is a good spokesman, if I talk about Mr. Fakhrul Chand. But I will tell him one thing, please do not try to advocate for Congress party, because Congress party is Indian National Confused Party. If you are going to try to advocate for them, even your party is going to be confused. So you concentrate on your party, because even Samajwadi Party is not doing very well in Uttar Pradesh. And if they also want to live in food paradise, they can, because Bharatiya Janata Party is very well connected on ground, and we know we are winning. All right, very confident BJP there. Dinesh Sharma is also joining us from the BJP Rajya Sabha MP. Mr. Sharma, the opposition is claiming that BJP डरी हुई है, इसलिए वो अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं रायबरेली. In fact, the news is that the Congress is all set to announce the candidates from Amethi and Raebareli perhaps after Wayanad. ये जो लोग इन्होंने क्यों नहीं अभी तक अनाउंस किया? ये जो भाई है, दिनेश जी आपकी आवाज कट रही है. Okay, I think we're having a disturbance there with his audio levels. And so that's the big news right now. You know, the blame game, the usual blame game between the BJP and the Samajwadi Party Indie bloc, both asking each other why haven't they announced their candidates from these two very interesting constituencies of Raebareli and Amethi. The suspense is building. फखरुल चंद जी फ्रॉम द समाजवादी पार्टी इज विद अस. फखरुल चंद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है अमेठी के लिए. इनफैक्ट ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी पोस्टर्स भी आ गए हैं अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा अब की बार. आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, जो प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस का विषय है, वो समाजवादी पार्टी का, क्योंकि रायबरेली अमेठी सीट कांग्रेस के पास है. लेकिन समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि 17 सीटें जिन पे कांग्रेस को जो मिली हैं उन पे मजबूत प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला प्रत्याशी हो. इसलिए समय भले लग रहा हो, लेकिन अगर वहां से परिवार का सदस्य कोई चुनाव लड़ेगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो परंपरागत सीट है कांग्रेस की. वहां की जनता का जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार से है, और गांधी परिवार के कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से वहां से जीत भी हासिल होगी. आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से पिछली बार जरूर हार गए थे, लेकिन आज अगर आप जमीन पे जाइए और जनता से बात कीजिए तो वो राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं. तो समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो वो बेहतर प्रत्याशी होंगे, और एक अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश से भी जाएगा, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में चुनाव लड़ रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सीटों पे भी फर्क पड़ता है. वो अच्छा होगा कि कांग्रेस अमेठी से आदरणीय राहुल गांधी जी को उतारे. चलिए, थैंक यू सो मच. और देखते हैं कि ये जो अलायंस है इसका क्या बेनिफिट्स होता है दोनों पार्टियों के लिए. फखरुल चंद जी, थैंक्स सो मच फॉर स्पीकिंग टू CNN News 18. वी हैव टू स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. न्यूज़ एंड अपडेट्स कंटिन्यूज ऑन द अदर साइड.